So hi Yatharth, welcome to Icona Topper Talks and congratulations on clearing both Thank you, IIM sir. Indore and SRCC. So please tell a bit about yourself before we begin with the other questions. Hello everybody, my name is Yatharth. I am from Varanasi and this year I have cracked IIM Indore and SRCC, and today I am excited to share my thoughts to you guys. Okay, so Yatharth, students like you are very, very rare. I mean, very few people get to convert both the colleges IIM Indore SRCC in their very first attempt. Yes. So there's one question that students ask us कि सर IP मैट CUT दोनों साथ में कैसे प्रिपेयर करूँ, है ना? तो सबसे पहले आप हमको बताओ कि IP मैट और CUT एक तरीके से साथ में कैसे प्रिपेयर करना चाहिए. So if we talk about balancing CUT and IPMAT, so if we talk about the subjects like GAT and English, so if you prepare for IPMAT Indore or Rohtak, the most of the part of GAT and English is already prepared for yourself. But when it comes to the domain subject, in my case, I have prepared very well for the boards. So it was not very much hard for me to prepare for the domain subjects. So if you are good with your board subjects, then most of the tasks for your domain subjects are done. And as you said, you have scored around 97 plus in boards. Yes, So sir. did that help you a lot for CUT domains as well? Yes, sir. It really helped for the domains. Um, a lot of question you may encounter might be confusing. So in that case, if you are well versed in any topic or you have read the exact lines in the NCERT, then you can make a educated guess that can get you marks. ओके, एंड इफ आई टॉक अबाउट CUT तो आपने कुछ एक्स्ट्रा मॉक्स भी दिए होंगे CUT के लिए, डोमेन्स के लिए, इंग्लिश के लिए, जनरल टेस्ट के लिए. तो आपने कितने मॉक्स लगभग दिए थे CUT में और IP मैट दोनों में? So if we talk about CUT, तो I have mostly given the previous year questions. So Okay. for preparing for CUT, I didn't give much time to the mocks. I only focused on the PYQs because I found them most relevant for the subject. Okay. So you were हाँ. just gauging कि किस टाइप का पेपर आता है CUT में. Let's see that, and that helped you do the mocks part as well, kind of, right? One thing is very special about you कि आप एक नॉन मैथ स्टूडेंट हो. तो Yes, sir. जनरली नॉन मैथ स्टूडेंट जो होते हैं उनके माइंड में थॉट रहता है कि मेरी तो मैथ्स है ही नहीं, तो मुझे कभी समझ में नहीं आएगी. एक साइकोलॉजिकल फियर रहता है. दूसरा ये होता है कि व्हेन यू आर राइटिंग IP मैट इंदौर, यू कैन नॉट रन अवे फ्रॉम मैथमेटिक्स, है ना? उसमें Yes, तो sir. आपके 11th 12th के भी कुछ 7-8 टॉपिक्स आते ही आते हैं. सो हाउ डिड यू कोप अप विद दैट? आपने कैसे आई वुड से साइकोलॉजिकली अपने आप को कैसे प्रिपेयर किया, समझाया कि मुझे मैथ्स करनी ही पड़ेगी, एंड देन यू आर एबल टू क्रैक IP मैट इंदौर, राइट? तो आप मैथ्स, बीइंग अ नॉन मैथ स्टूडेंट, आप जो मैथ्स का पोर्शन है वो आपने कैसे हैंडल किया? टेल अस अबाउट दैट. So first of all, लोगों के साथ क्या होता है कि जब वो लोग जब मैथ्स को सिलेक्ट नहीं किए होते हैं तो उन लोग के मन में अपने आप ही एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है कि मेरे करिकुलम में तो मैथ्स है नहीं, मैं कैसे करूँगा, ये तो मेरे सिलेबस से बाहर है, मेरे सोच से बाहर है. लेकिन ये माइंडसेट बहुत बेकार है, इससे दूर रहना चाहिए. और यू हैव टू सी द टॉपिक्स एज अ पीस ऑफ नॉलेज. आपको ऐसे नहीं देखना है कि ये कोई अलग सा चीज़ है. आपको इसको बस ग्रैस्प करना है और इसको अच्छे से अप्लाई करना सीखना है. और अगर आप एक नॉन मैथ स्टूडेंट हैं तो आपको एक कोचिंग की हमेशा ज़रूरत पड़ सकती है. जैसे इन माई केस iQuanta हेल्प मी अ लॉट, एंड फॉर मैथमेटिक्स आई रिलायड ऑन द लाइव क्लासेस ऑफ योगेश सर, द recorded classes provided by iQuanta, and the dashboard questions, they are really helpful. And if you do the live classes and you do the dashboard questions, you are pretty much well prepared for the exam. ओके, सो ही जस्ट शेयर्ड कि देखो मैथ्स अगर आपकी नहीं है 12th के अंदर, तो आपको ये नहीं सोचना है कि भाई मेरी तो अभी मैथ्स कभी हो ही नहीं पाएगी, मेरे लिए इम्पॉसिबल है मैथ्स करना. ये लास्ट ईयर भी एक स्टूडेंट थी हमारी, श्वेता, इफ़ यू गाइज रिमेंबर, शी वॉज फ्रॉम PCB बैकग्राउंड. सो इफ़ यू हैव नॉट चेक द पॉडकास्ट, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है. सो ये दोनों नॉन मैथ स्टूडेंट थे. इनका कहना ये था कि हम उससे भाग नहीं सकते थे. एक तरीके से मैथ्स हमको करनी थी, तो हमने उसको पकड़ा, उसको टाइम दिया जैसे हम बाकी सब्जेक्ट्स को देते हैं, एंड इन दी एंड जो भी चीज़ हमें समझ में आई उससे वी वर एबल टू डू द थिंग्स. सो ऐसा कभी नहीं करना है कि आप नॉन मैथ्स वाले हो तो आप क्रैक ही नहीं कर सकते. ओके, थोड़ा सा बिलीफ आपको रखना पड़ता है, इजंट इट? Yes. अच्छा, अब हम अगली चीज़ पे आते हैं यथार्थ. ऑल्सो बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक कॉमन डाउट होता है कि सर हम अपनी प्रिपरेशन अगस्त में शुरू कर रहे हैं, जैसे अभी IP मैट 27 वाले बच्चे,
ये पूछते हैं बहुत बार कि अगस्त ऑलरेडी आ गया है, अगर हम प्रिपरेशन शुरू करते हैं तो ऐसा नहीं कि बहुत लेट हो गया है. सो टू बी वेरी ऑनेस्ट, यथार्थ ने भी अपनी प्रिपरेशन अगस्त में शुरू करी थी एंड यू कैन सी ही हैज़ क्रैक द एग्जाम. ओके, सो इट्स नेवर टू लेट. एंड आई वॉन्ट टू आस्क यथार्थ ओनली कि यथार्थ, आपने अगस्त से शुरू किया तो आपका एक रोड मैप रहा होगा, आपने कुछ एक माइंड मैप क्रिएट किया होगा. हाउ डिड दैट हेल्प यू टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम अगस्त एंड देन फाइनली क्लियर द एग्जाम? सो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से कि चाहे अगस्त हो या दिसंबर हो, या फिर आपके एग्जाम में 1 महीने ही बाकी हो, या फिर आपके पास 2 साल हो, आपको हमेशा लगा कि आपके पास टाइम बहुत कम है. True. लेकिन हमेशा आपके पास एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, एक प्लान होना चाहिए. तो इन माय केस 1 ईयर का ही टाइम था, ऑलमोस्ट अगस्त से ही स्टार्ट किया था प्रिपरेशन. तो एक स्ट्रक्चर चाहिए था, तो उसके लिए आई टुक अ हेल्प ऑफ अ कोचिंग विच इज iQuanta ऑफ कोर्स, and it gave me a structure to cover the topics, and I fully used the course by first going through all the live classes with full focus, and simultaneously I also did all the questions in the dashboard and the practice question to make the topic strong, so that I could be able to solve them in mocks and sectionals. So yeah, if you go with the structure and if you trust the process, you will be good to go. एंड डेफिनेटली एक चीज़ आती है, जैसे आप नॉन मैथ स्टूडेंट होते हो तो शुरू शुरू में मैथ्स के क्वेश्चन करने में यू गेट स्टक अ लॉट ऑफ टाइम्स, सो देन यू नीड अ डाउट सपोर्ट. सो डिड आई हाउ मच डिड iQuanta हेल्प यू विद दैट डाउट सपोर्ट? So I want to say that iQuanta का डाउट सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल है. मतलब 1 मिनट में डाल दो डाउट, तुरंत ही रिप्लाई मिल जाता है उसका. और कम्युनिटी में 7-8 डाउट सॉल्वर्स तो ऐसे ही लगे ही रहते हैं पूरे दिन खाली. डेफिनेटली, इनफैक्ट स्टूडेंट्स ही आपका डाउट सॉल्व कर देते हैं. हाँ, स्टूडेंट्स कई बार कर देते हैं. और आप चाहे जितने भी क्वेश्चन पूछ लो, सिल्ली से सिल्ली क्वेश्चन पूछ दो, आपको मिल ही जाएगा उसमें से. चैट जीपीटी, गूगल कुछ नहीं काम आता है. डेफिनेटली. सो लाइक वी हैव अ डाउट जो वेरी फ्यू पीपल नो इट कि iQuanta का 24/7 डाउट सपोर्ट होता है, जिसमें आप किसी भी क्वेश्चन का, चाहे वो iQuanta के मटेरियल से हो, नॉन iQuanta मटेरियल से हो, पुराने पेपर से हो, आपके दोस्त ने आपसे पूछा हो, आप हमेशा उसका स्क्रीनशॉट या फोटो लेकर के ग्रुप में डाल सकते हो. एंड यू नो द ग्रुप इज एक्टिव टिल 1 AM एट नाइट एज वेल, राइट? तो डाउट सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है डेफिनेटली, है ना. अदरवाइज होता क्या है कि आप एक डाउट पे फंस जाते हो तो शायद आपका पढ़ने का मन ना करे, उस दिन आप गिव अप भी कर सकते हो, इजंट इट? यस सर. ठीक है. यथार्थ, एक और चीज़ होती है, जैसे सब लोग चाहते हैं कि मुझे एक टॉपर का स्टडी रूटीन पता लग जाए, तो आप अपना थोड़ा सा स्टडी रूटीन हमें बताओ, कैसे आप सब्जेक्ट्स मैनेज कर रहे थे? जैसे आपका स्कूल भी था तो आपने क्वांट, वर्बल, LR इन सबको मैनेज कैसे किया? सो सर, हम बताना चाहते हैं कि हम स्कूल रेगुलरली जाते थे, और आई वाज अ काइंड ऑफ स्टूडेंट जिसकी अटेंडेंस क्लास में हाईएस्ट रहती है. तो अराउंड 90% अटेंडेंस थी, फॉर योर इन्फॉर्मेशन. तो क्या होता है कि आप लोग सोचते हैं कि अगर आप स्कूल जाएंगे तो आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा, आप अपने से पढ़ाई नहीं कर पाओगे. तो क्या होता है, मेरे केस में स्कूल हमें डिसिप्लिन मेंटेन करने में हेल्प करता है. जैसे कि इफ यू आर इन अ क्लास एंड यू आर अटेंडिंग द lectures regularly and you are under the vision of teachers, Definitely. so there is a pressure on you, on yourself, that you have to be accountable for whatever the task is being given to you, whatever the tests are there, whatever the half yearlies and pre-boards. And if you go with those all the things, you will be pretty much prepared for the boards, and आपका वहीं से हो जाएगा. रही बात IP मैट की, तो अगर आप दिन में 3 घंटे भी 2 घंटे भी देते हैं तो वो मोर देन इनफ है इस एग्जाम के लिए. एंड जब आपका बोर्ड्स एक बार लो हो जाए, जब आपके बोर्ड्स करीब ना हो, या प्री बोर्ड्स ना हो, या फिर बोर्ड्स खत्म ही हो गए हो, तो आप फुल 8 to 7 आवर्स IP मैट में दे सकते हैं. ऐसी बात नहीं है. राइट. सो कई बच्चे डमी स्कूल लेते हैं, यथार्थ आपको पता ही है. हाँ. एंड स्टिल दे कंप्लेन कि भाई मेरे को टाइम नहीं मिल रहा, मैनेज नहीं हो पा रहा, राइट? सो ही वेंट टू अ रेगुलर स्कूल. ही मेंशन कि इनकी अटेंडेंस बहुत हाई थी एंड देन ही वाज एबल टू मैनेज थिंग्स, राइट? सो डमी स्कूल स्टूडेंट्स जो हैं, सुन रहे हैं, वैसे तो बोलना नहीं चाहिए, बट डमी स्कूल स्टूडेंट्स जो होते हैं भाई, उनके पास बहुत ज़्यादा टाइम है एंड दे आर लकी टू हैव पूरा दिन जो IP मैट को आप दे सकते हो, राइट? सो ग्रेट यथार्थ. ठीक है, आप एक और चीज़ बता रहे थे मुझे पहले कि आपका एक अपना गोल होता था एंड ऑफ द डे. जैसे आप कह रहे थे कि मैंने एक रात पहले मैं डिसाइड कर लेता था कि मेरे को कल सुबह क्या करना है, अगले दिन मैं एग्जीक्यूशन पे आता था.
तो वो चीज़ हमें बताओ कि कैसे आप रात को डिसाइड करते थे कि भाई मेरे को कल सुबह ये करना है। और कई बार ऐसा होता होगा कि भाई आपके पास टाइम कम होता होगा, जैसा आपने बोला कि मेरा मूड कभी कर रहा है कभी नहीं कर रहा है, तो कैसे आप मेक श्योर करते थे कि अगले दिन जो मैंने डिसाइड किया वो एग्जीक्यूट हो जाए? तो ये जो मेरा फ्रेमवर्क था, इसमें लगते थे मैनेजमेंट के फंक्शंस, जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्ट, ये जो होते हैं ना पूरे। जैसे मेरा क्या था कि एक कॉपी थी, उसमें होता था प्लानिंग, उसमें प्लानिंग होता था कि ये मेरे टास्क हैं कि मुझे ये असाइनमेंट करना है, फिर उसके बाद मुझे ये वर्बल की ये वीडियो देखनी है, फिर उसके बाद 2 आरसी सॉल्व करने हैं, और ऐसे ही जो भी मेरे टास्क रहेंगे वो सब नोट डाउन हो जाते थे। मोस्टली 7-8 टास्क होते हैं। ओके। और एक दिन पहले हम ये भी देख लेते थे कि अगले दिन मेरे पास इतना टाइम रहेगा भी कि नहीं, कि 7 आउट ऑफ 8 टास्क हम कर भी लें। हाँ, किसी दिन आपका बिजी हाँ, होता है अगले दिन, तो आपने थोड़ा कम कर लिया टास्क, तो आप मतलब पहले चेक कर हाँ, लेते थे कि मेरे को कम करना है कल ज्यादा करना है। और जब हम नेक्स्ट मॉर्निंग उठते थे तो मेरे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूशन रहता था कि ये मेरे टास्क हैं, चलो ठीक है, ये समय है, ये टास्क है, सबको एक एक करके टिक करते जाना है। और फिर ऐसे करते करते रात हो जाती थी। रात होते होते समझ में आता था कि प्लानिंग में मेरी कितने एक्यूरेसी थी, कि वो मेरे अगले दिन को कितने अच्छे से रिफ्लेक्ट कर पा रहे हैं, और वो जितने अच्छे से रिफ्लेक्ट करेगा उतने अच्छे से मेरी एफिशिएंसी रहेगी। मान लीजिए कि अगर मेरे 7 आउट ऑफ 8 टास्क हुए हैं, तो इसका मतलब है कि एफिशिएंसी काफी अच्छी थी, एग्जीक्यूशन काफी अच्छा था। लेकिन अगर 4 आउट ऑफ 8 टास्क हुए हैं खाली, तो उसका हम रीजन निकालते हैं। जैसे कंट्रोलिंग में हम लोग डेविएशंस फाइंड करते हैं, वैसे हम लोग रीजंस फॉर डेविएशन फाइंड कर रहे थे कि क्यों मेरे 4 टास्क छूट गए, और अगले प्लानिंग में उसको सही करते हैं कि क्यों छूटे, क्या हम ज्यादा अपने से एक्सपेक्ट कर लिए थे, क्या कोई अनसर्टेन चीज आ गई थी, राइट, एंड ऑल ये सब। अच्छा ठीक है यथार्थ। और एक चीज़ बताओ यार, जैसे मतलब ये तो चलो पढ़ाई की बात हो गई कि सीयूटी कर रहे थे, आईपीएट कर रहे थे, स्कूल जा रहे थे, क्या आप सोशल मीडिया ऐप्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब ये सब स्क्रॉल करते थे, रील्स वगैरह करते थे, तो कितना करते थे? टू बी रियली ऑनेस्ट, आई डोंट हैव एन इंस्टा अकाउंट। अच्छा। आई डोंट इवन have a Facebook account that is like the normal Facebook account. So you're not active on these platforms? I am not active on any of the social media account. I only use YouTube. Okay. And वो भी पढ़ाई के लिए? हाँ, पढ़ाई के लिए। And WhatsApp तो है ही। ठीक। Group and all, I contact community and IPMAT. So जैसे कभी फन करना होता था, आपको मन करता हो कि थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई हो गई, अब क्या करते थे आप? खाना खाने जाते थे, घूमने जाते थे, तो क्या करते थे एग्जैक्टली? फन तो ऐसे कुछ मतलब ऐसे आता नहीं था कि चलो आज चलते हैं कहीं। मतलब ये हमेशा मेरे माइंड में रहता था ना कि नहीं, पढ़ाई करना है, पढ़ाई करना है, क्रैक करना है, एग्जाम क्रैक करना है। राइट। हाँ, और जैसे कि आउटिंग तो हो ही जाता है कभी कभी, शाम को बाहर निकल ही जाते हैं, मतलब वो मोर देन इनफ होता था। हाँ, जैसे कोर्स करने हुए हैं कुछ घर के। ठीक है। हाँ। ओके यथार्थ, एक और चीज़ होती है, जैसे यार स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर इंटरव्यू कैसा होता है एग्जैक्टली आईपीमैट का, है ना, इंदौर का, बहुत बच्चे जानना चाहते हैं। हाँ। क्योंकि बहुत कम बच्चों को हर साल मौका मिलता है, तो एक बार अपना इंटरव्यू का आप हमें ब्रेकअप दे दो कि क्या क्या एग्जैक्टली आपसे पूछा गया था, कैसा आपका इंटरव्यू रहा था बेसिकली। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से कि जो इंटरव्यू आपका IIM इंदौर का होता है, वो मोस्टली लाइक 80 to 70% आपका एकेडमिक्स बेस्ड होता है। अगर आप अपने ज्यादा एक्स्ट्रा करिकुलर्स को शो अगर नहीं करते हैं, इन माय केस आई हैड नो एक्स्ट्रा करिकुलर्स, नो एक्स्ट्रा करिकुलर्स, सिर्फ अच्छा एकेडमिक्स था आपके पास, वही ठीक। ओनली आई स्कोर्ड अराउंड मतलब गुड परसेंटाइल इन साइंस ओलंपियाड। अच्छा, ओलंपियाड, ओके, कॉमर्स ओलंपियाड बाय साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन। हाँ ठीक है। हाँ, so I had no extracurriculars, so my interview was mostly academics. And apart from this, a slight GK and all, like अभी हो रहा था ना ये CJP and all वाला, okay. And थोड़े बहुत आपके बहुत ज़्यादा स्टैटिक GK वाले क्वेश्चन, जो कि मतलब होते हैं आपको बस एक तरीके से कि आपको प्रेशर में डालने के लिए, कि आपको ऐसा भी हो कि आपको कुछ आ नहीं रहा, आपको एडमिट करना पड़े, ताकि आपका जो ऑनेस्टी है वो पैनल के सामने आ सके। डेफिनेटली। हाँ। और आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, आप कह रहे थे कि मैं इकोनॉमिक्स से था, तो इकोनॉमिस्ट का नाम पूछा था, यू कुड नॉट रिकॉल, बट देन ही आस्क्ड यू अ क्रॉस क्वेश्चन अगेन एंड देन यू वर एबल टू आंसर इट, है ना। सो व्हाट एक्चुअली हैपेंस कि
जब भी आप इंटरव्यूज़ में जाते हो आपसे लगभग एकेडमिक्स तो देखो पूछा ही जाएगा। तो कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनका 12th का एकेडमिक्स ठीक नहीं होता, प्लीज़ अपना एकेडमिक्स ठीक करो, बिकॉज 70-80% तो एकेडमिक्स ही होता है। फिर आता है जीके करंट अफेयर्स। एज ही सेड कि वो थोड़ा बहुत आपको प्रेशर में डालने के लिए, आपके इंटरव्यू को थोड़ा बहुत डिस्टर्ब करने के लिए होता है, बिल्कुल। चेक करने के लिए कि क्या आप वो सेम कंपोजर मेंटेन करते हो आगे इंटरव्यू के अंदर, है ना। Yes, sir. सो ठीक है, दिस वाज ए इंटरव्यू एक्सपीरियंस। अब हम आ And one हाँ। thing I want to add something more, हम्म, that so most of the time I see that people who ignore their schools and in extreme cases who opt for the dummy schools are missing out a lot on the academic front. So if you are studying from if you are not giving importance to your boards and to your school, then it may happen that when the panel will ask you the in-depth questions, जैसे कि IIM इंदौर में जनरली होता है कि वो लोग इन डेप्थ क्वेश्चंस ही पूछते हैं एकेडमिक्स से, आपके हाँ। सब्जेक्ट से, हाँ। तो आप उस समय फंबल करेंगे तो आपके चांसेस रिस्क पे हो जाएंगे और आई वुड से दैट कि इन IIM इंदौर द पैनल इज एक्चुअली लुकिंग फॉर द गुड स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स दैट आर हाईली एकेडमिकली इंक्लाइंड, क्योंकि आगे भी जाके हाँ। एकेडमिक रिग्रेस ही रहता है हाँ, आपका हाँ। आईपीएम वगैरह। So that is a thing. And if you are a good student, if you are a good academically strong, and you have a good percentage adds to the impression. So you cannot ignore your academics. Academics is very important. You cannot sacrifice it for your IP mat. डेफिनेटली, एंड ही ऑल्सो मेंशन्ड कि मेरा एक्स्ट्रा करिकुलर नहीं था, सो ही हैड अ गुड एकेडमिक बैकग्राउंड। देखो ऐसा होता है अगर आपके पास एक्स्ट्रा करिकुलर्स नहीं है तो इन दैट केस आपका एकेडमिक ठीक होना चाहिए ना। अदरवाइज ऐसा है कि अगर आपका एकेडमिक ओके है, सपोज 80s में है, देन आप एक्स्ट्रा करिकुलर्स ऐड कर सकते हो, बट दे डोंट मैटर अ लॉट, राइट। आपसे कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर क्वेश्चन नहीं पूछा गया होगा इंटरव्यू में। वाज देयर एनी क्वेश्चन? No, sir. एक्स्ट्रा करिकुलर नहीं था। No. ओके यथार्थ, थैंक यू सो मच। सो यथार्थ, यू ऑल्सो मैंशन वन थिंग दैट इज़, आपने मेनली IIM इंदौर को ही टारगेट किया था शुरू से, एंड ऐसा टारगेट किया था कि आपने बताया कि आपने शिलोंग, रांची कुछ अप्लाई नहीं किया था। दूसरा, आपने ना ही रोहतक लिखा, IIM रोहतक, IP मैट रोहतक, ना ही आपने जिप मैट लिखा, आपने मेनली बस IP मैट इंदौर लिखा और CUT लिखा। Yes, sir. सो मतलब आप बहुत ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए होगी आपको, राइट, कि आपने सोचा होगा कि मेरे को बस IIM इंदौर जाना है, कोई बैकअप आपने नहीं रखा, है ना। Yes, sir. सो हाउ वर यू सो श्योर कि भाई मेरा IIM इंदौर कन्वर्ट हो ही जाएगा? किस चीज़ ने आपको इतना श्योर बनाया कि IIM इंदौर ही करना है मेरे को, और टुडे यू आर सिटिंग हैविंग कन्वर्टेड दिस कॉलेज? सर आई वुड लाइक टू से कि मेरे अंदर ना स्टार्टिंग से ही ये डीप कन्विक्शन था मेरे अंदर कि या तो SRCC या तो IIM इंदौर, और बहुत ही अंदर से डीप कॉन्फिडेंस भी था कि इन दोनों में से कोई ना कोई एक तो मिल ही जाना है। और वही कॉन्फिडेंस और वही विल पावर हमें हेल्प किया रोज़ वर्क करते हुए, और आज सिर्फ और सिर्फ मेहनत और अपने ऊपर बिलीफ और कॉन्फिडेंस की वजह से आज मेरे हाथ में दोनों कॉलेजेस हैं। डेफिनेटली। सो गाइज, अ लॉट ऑफ यू कीप बैकअप्स। ऐसा नहीं है कि बैकअप्स नहीं रखने चाहिए, बट ऐसा होता है, देखो अगर आपका क्लियर है कि मेरे को IIM इंदौर ही जाना है, SRCC, बिकॉज दैट हैपन्स जब आप एवरेज के लिए सेटल नहीं करना चाहते हो ना। Yes, आप sir. चाहते हो कि भाई मेरे को बेस्ट ही कॉलेज मिले। Yes, sir. सो Exactly. अगर आप इतने बिलीव से किसी कॉलेज को टारगेट करते हो एंड उसकी तरफ काम भी करना पड़ता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ बिलीफ ही सब कुछ होता है। यू हैव टू वर्क फॉर दैट, एंड ही रियली वर्कड हार्ड, ठीक है। और यथार्थ एक और चीज़ होती है, जैसे कई बार आपको डाउन फील होता होगा, है ना, कि मूड सही नहीं है, प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं जा रही, बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ Yes, रहा है। सो देन यू ऑलवेज हैव अ सपोर्ट सिस्टम एट योर होम, राइट। जैसे कई बार पेरेंट्स होते हैं, हमारे सिबलिंग्स होते हैं। हु वॉज योर सपोर्ट सिस्टम ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन? So for me, my support system was my elder sister, and if I tell something about her, she has also been a management aspirant, and she was also preparing for CAT. So she was somewhat around the things that I also have confronted, जो कि मेरे सामने भी आ रही थी, जैसे कि मॉक्स के स्कोर स्टक हो जा रहे थे, कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा था, या फिर ऐसे क्लूलेस हो जा रहे थे कि अब तो कुछ हो ही नहीं रहा है चाहे जितनी मेहनत कर रहे हैं। तो एट दैट पॉइंट हर इनसाइट्स हेल्प मी, एंड अ गुड थिंग हैपेंस व्हेन समवन हु हैज गॉन थ्रू ऑल द थिंग्स। आपको ये होता है कि आप उसे हार्ड वे में नहीं
कर रहे होते हो, आपको hard way- एफिशिएंटली तरीका मिल आप जाता है। हार्ड वे में उसको सीखते नहीं हो, आप थोड़े से मतलब एनर्जी और टाइम बचा लेते हो। तो वो चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही है और उसके लिए काफ़ी ज़्यादा ग्रेटफुल है हम। एंड अ लार्ज पार्ट ऑफ माई सक्सेस गोज टू हर एंड आई थैंक यू हर फॉर दिस ग्रेट। एक और चीज़ यथार्थ, जैसे होता क्या है कि आपकी सिस्टर ने मुझे बताया, वी हैव हर, वी विल ब्रिंग हर एज वेल ऑन द पॉडकास्ट, एंड शी टोल्ड मी दैट यथार्थ थोड़ा सा इंट्रोवर्ट है एंड ही डजंट स्पीक मच, एज इन he has not faced all these interviews and all, right? So generally आपका IP MET इंटरव्यू भी पहला इंटरव्यू होता है, Yes, sir. 12th वाले बच्चे के लिए पहली बार हो रहा होता है। तो आपने मुझे बताया कि थोड़ा सा इंट्रोवर्टनेस आपके अंदर हाँ. थी। How did iQuanta help you overcome that? Because iQuanta has a superb interview program, right? And you mentioned that you've taken over 15 interviews. Yes, So sir. पहले इंटरव्यू में आप कैसे थे और लास्ट में जब आप फाइनली 15 इंटरव्यूज के बाद आप कैसे थे? So if I recall about my first interview, so I would say that it was a total zero. It was a total blunder, and if I had given the same interview on the exact the main interview day? I would not have converted at all. So for a person like me who is not habituated of speaking so much in front of anybody, and particularly in English, so it becomes really important to practice over and over a lot. Definitely. And you also need a lot of direction for that. So in that way, iQuanta's interview preparation helped me a lot. It helped me a lot. It helped me to give a lot of mock interviews. And interviews बहुत short नहीं होते थे कि बस 10-15 मिनट किया फॉर्मेलिटी के लिए और फिर उसके बाद एंड कर दिया। Like rigorous interviews, 30 minutes, 40 minutes, उसमें आपका फीडबैक भी होगा, आपको एक्शन प्लान भी दिया जाएगा कि आपको आगे जाके क्या करना है, आप अपने आप को और ज़्यादा इम्प्रूव करते जाएंगे। एंड इफ़ यू हैव अ फियर दैट अगर मैं इंटरव्यू में ना बोल पाया, मैं फंबल कर गया, तो आप प्रैक्टिस करके ही उसको सही कर सकते हो। और प्रैक्टिस करने के लिए आपको एक्चुअल मॉक इंटरव्यूज की ज़रूरत होती है, जो iQuanta अच्छे से प्रोवाइड कर देता है। ऑल्सो आपके जो मेंटर्स होते हैं जो iQuanta आपको प्रोवाइड करता है, दे आर ऑल IIM स्टूडेंट्स, राइट? यस, ऑफ कोर्स। सो ऐसा कुछ हुआ कि जो आपसे मॉक इंटरव्यूज में पूछा था वो एक्चुअल एग्जाम में आपको कुछ भी सिमिलैरिटी मिली? वाज देयर एनी क्वेश्चन और एनीथिंग? यस, सो देयर इज अ क्वेश्चन कि आपको अगर इन द मॉक इंटरव्यू, so there was a person from IIM Calcutta, so he was taking my interview and he asked me कि अगर तुम्हें अपने स्टेट का CM बना दिया जाए तो तुम कैसे रिफॉर्म्स करोगे, कैसे डेवलपमेंट्स करोगे, क्या करोगे। एंड इफ यू डू अ क्वेश्चन लाइक दैट इन अ मॉक इंटरव्यू, सो आप जब मॉक एंड करते हो तो उसके बाद भी आपके मन में वो रन करता रहता है कि हाँ ऐसे आंसर दे सकते थे, वैसे आंसर दे सकते थे, ये पॉइंट अच्छा है। तो what happened कि in my Indore interview, the same identical, not the same, but the identical question came कि आप अपने रूरल एरियाज में डेवलपमेंट, रूरल इंडिया में डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं। तो it was identical and extemporary topic, तो उसमें तो उसमें अच्छे खासे पॉइंटर्स याद आ गए थे लकीली। सो या इफ यू गिव अ लॉट ऑफ मॉक इंटरव्यूज, गेन अ लॉट ऑफ exposure in different questions, the probability of you getting the same question increases and you get lucky. चलो फिर यथार्थ आपसे लास्ट एक क्वेश्चन कि क्या आप बोलोगे अपने जूनियर्स को जो पॉडकास्ट देख रहे हैं कि वो मोटिवेट हो जाएं बेसिकली काम करने के लिए आगे? एक साल अभी जैसे कई बच्चे अगस्त में शुरू करने वाले हैं, उनको एक तो आंसर आपने दे दिया कि भाई अगस्त से भी प्रिपरेशन हो सकती है, हाँ, आप सिट बैठे हो, राइट? लाइव एग्जाम्पल। दूसरा ये कि आप उनको मोटिवेट कैसे करोगे कि वो अच्छे से पढ़ें और इस पॉडकास्ट से जो भी आप चीज़ें बताओगे अप्लाई करें। तो ही इज़ गोइंग टू टेल यू समथिंग जो आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करेगा अगर आप इसको इनकलकेट करते हो इन योर प्रिपरेशन। सो फॉर मी द थिंग दैट मेड मी क्रैक बोथ दीज एग्जाम्स, बोथ दीज कॉलेजेस, वाज अ स्ट्रॉन्ग इंटरनल डिजायर, अ स्ट्रॉन्ग ड्राइव इनसाइड योरसेल्फ, अ स्ट्रॉन्ग पर्पस कि तुम्हें ये कॉलेज क्यों क्रैक करना है, तुम्हारे इसके पीछे मोटिव क्या है। तुम अपने फैमिली को एक अच्छी लाइफ देना चाहते हो, तुम अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना चाहते हो, तुम आगे जाके एक अच्छा कैरियर बनाना चाहते हो, रिस्पेक्टेबल लाइफ जीना चाहते हो, और उस पर्पस को तुम अपने जिंदगी में हमेशा जीता जागता बना के रखो कि जब भी तुम सुबह उठो तो तुम्हारे मन में वो चीज हो
कि हाँ ये मेरा गोल है, अब इसको इस गोल को अचीव करने के लिए ये मेरा एग्जाम है, इसके लिए पढ़ना है हमें रोज. So you basically have to go crazy for it, right? You have to go crazy for it. चलो लास्ट क्वेश्चन बोला था बट फाइनल क्वेश्चन है कि कहाँ जाना चाहोगे? आई एम इंदौर जा रहे हो या फिर SRCC जा रहे हो? So of course I am Indore. Yeah, because I find that it's a greater place. MBA भी मिल जाता है साथ में. राइट. और फ्यूचर में कैट दोगे आप? हाँ. And CAT, of course, I would take a chance. And if God wants, then we can go to ABC. ओके. तो उसने फिर से अपना इंटरनेट डिजायर आपको बता दिया है. Probably after 3 years we'll interview Yatharth again for ABC. Maybe I am ABC. So that was a great interview, Yatharth. Yes, sir. We also have Yatharth's sister here with us. She has also come to meet us and उसका support system, and she has come from Varanasi. यथार्थ को वही लेकर के आई हैं. We'll also have a word with her because उन्होंने बहुत क्लोजली मॉनिटर किया है यथार्थ की प्रिपरेशन को. खुद भी वो मैनेजमेंट एस्पिरेंट रही हैं. She also has 2 cents to give. Okay, so please ma'am, please come over and we'll ask some questions from her as well. So ma'am, first of all, you know that you are also a management aspirant और आपने भी ये सारे एग्जाम्स लिखे हुए हैं. Finally somebody from your home has converted IIM इंदौर, which is a very good IIM. Obviously old IIM है. तो आपको कैसा लग रहा है मैम? एंड आपका भाई है जस्ट उसने क्लियर किया है. ऑफ कोर्स आई एम रियली ग्लैड कि उसने कर लिया. और एक्चुअल में सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है कि लाइक बीइंग एन एल्डर सिस्टर और एल्डर सिबलिंग, तो मेरे पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मेरे से थी कि लाइक मैं कन्वर्ट करूँगी ऐसा कुछ. बट बीच में आई हैव डिसाइडेड समथिंग एल्स. मेरे कुछ और प्लान्स बन गए. बट ही हैड डन दैट और फाइनली पेरेंट्स आर मोर हैप्पियर देन मी. एंड ऑफ कोर्स उसने कर लिया. उसके अंदर वो पोटेंशियल था तब क्या. और ठीक है. ऑल्सो मैम, जैसे उन्होंने आपको अपना सपोर्ट सिस्टम बताया है, तो आपने कैसे इनकी पूरी प्रोग्रेस जो है वो मॉनिटर करी? जैसे आपने ये सारे एग्जाम्स प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको भी थोड़ा बहुत पता था कि भाई क्वांट है, वर्बल है, लॉजिकल है, क्या पढ़ रहा है, क्या मॉक दे रहा है. सो आप कैसे इनको मॉनिटर करते थे ड्यूरिंग हिज प्रिपरेशन? एक्चुअली क्या है कि इसने ऑलरेडी अगस्त में ही जैसे आईक्वांटा ले रखा था. तो बीइंग एन एस्पिरेंट मुझे पता था कि लाइक हाउ इट वर्क्स, कि किस टाइम पे क्या चीज़ें हैं, कब मॉक देना है, कब मॉक देना है, कब प्रिपेयर करना है, कब रुक जाना है. तो आई यूज्ड टू चेक. और कभी कभी तो मैं सरप्राइज चेक भी कर लेती थी. लाइक तुमने मॉक दिया, चलो दिखाओ कितने मार्क्स हैं. कभी कभी ये भी होता था कि किसी मॉक में 120 मार्क्स है, किसी में 34 मार्क्स है. तो ही यूज्ड टू गेट लाइक डीमोटिवेटेड कि नहीं हो पा रहा है, मैं दूसरा मॉक लूंगा, दूसरे कोचिंग से मॉक लूंगा. सो आई हैड टू बी मोर स्ट्रिक्ट एट दैट टाइम. नो, यू हैव टू स्टिक विद इट बिकॉज आई नो कि हर डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट का एक डिफरेंट पैटर्न होता है, डिफिकल्टी होता है, डिफरेंट डिफिकल्टी होती है. तो वहाँ वो डिस्ट्रैक्ट ना हो, उस वजह से उसको एक गाइडेंस देना और ये सारी चीज़ें. तो मैं रेगुलरली चेक करती थी. तो जो मिस्टेक्स जो इनिशियल स्टेजेस में स्टूडेंट्स करते हैं वो कहीं ना कहीं इनकी नहीं हुई, बिकॉज मैंने मॉनिटर करा उन चीज़ों को. मैम, जैसे इन्होंने आईक्वांटा में एनरोल किया था, तो वाज ही हैप्पी विद व्हाटएवर आईक्वांटा इज डूइंग? एक्चुअली या ही वाज हैप्पी. एंड सेकंड थिंग कि मैंने भी बहुत रिसर्च एंड ऑल किया हुआ था. ओके. अदर इंस्टीट्यूट्स. आपने डेमो लिया था पहले आईक्वांटा का? डेमो तो नहीं लिया था एक्चुअली. यू मस्ट हैव सीन द कंटेंट ऑनलाइन ऑन YT एंड ऑल. YouTube पे तो ऑलरेडी सारे कंटेंट्स अवेलेबल हैं, टीचर्स अवेलेबल हैं. तो बस मैंने बोला कि नहीं, यहाँ से प्रिपेयर करते हैं और स्टिक टू वन थिंग. एंड इफ यू हैव दैट कैपेबिलिटी तो तुम कर ले जाओगे. एंड ही हैड डन दैट. ओके मैम, फाइनली एक एडवाइस अगर आप उन लोगों को देना चाहोगे, जैसे क्या होता है कि ऑनलाइन में बच्चा थोड़ा सा अकेला होता है प्रिपेयर करते वक्त. ऑफलाइन में तो मैम एक क्लासरूम है, बट ऑनलाइन में बच्चा एक टीचर से पढ़ रहा है. तो कई बार क्या होता है कि बच्चे को बहुत क्लोजली देखना होता है एक तरीके से, है ना. तो कई बार क्या होता है, जैसे मैम यू आर देयर विद यथार्थ, बट कई ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं होते एग्जाम्स के बारे में. What is that one advice you would like to give to them so that उनका बच्चा और बेटर परफॉर्म कर पाए? So basically अभी क्या प्रॉब्लम होती है कि
पेरेंट्स को पता ही नहीं होता कि उनका बच्चा लाइक क्या पेपर लिखने जा रहा है या फिर हम्म। एग्जाम पैटर्न क्या है, और एक्सपेक्टेशंस तो होती हैं। लाइक अगर बच्चे ने कह दिया कि मुझे ये Right. करना है, प्रिपरेशन करनी है, अब बच्चा तो जा रहा है क्योंकि उसको भी पीयर प्रेशर है, उसको भी है कि हाँ सब कर रहे हैं मैं भी करता हूँ, और उसमें बच्चा गया है, उसको अभी गाइडेंस नहीं है। तो पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि एक बार वो बच्चे से बैठ के बात करें, जो एग्जामिनेशन वो लिखने की बात कर रहा है या फिर प्रिपरेशन की बात कर रहा है, बैठे समझें। ऑनलाइन यूट्यूब पे अब तो सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती हैं, राइट। बच्चे के इंटरेस्ट गोल्स अलाइन कर रहे हैं उस चीज़ों से, उन चीज़ों से। अदरवाइज वी हैव डिफरेंट ऑप्शंस, कहीं भी जा Definitely. सकता है। तो वो भी समझें और देन किसी चीज़ पे जाएं। और उसमें क्या होता है कि बच्चे को बहुत बार डिमोटिवेट हो जाते हैं, एक बार 2 बार 3 बार, हर बार तो अटेम्प्ट बात करते हैं। करते रहे उनसे। हाँ, अटेम्प्ट देते रहते हैं। तो पेरेंट्स का भी ये है कि लाइक कहाँ क्या डिफ़िकल्टी आ रही है, राइट। उसमें आकर बैठ के बात करें। और दूसरी चीज़ ये भी कि स्टूडेंट्स को भी थोड़ा सा ये इनिशिएटिव लेना चाहिए कि हाँ अगर कोई चीज़ नहीं समझ आ रही तो ज़रूरी नहीं कि अगर पेरेंट्स समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे, एक अपना मेंटोर बनाओ, खुद डिसाइड करो मेक अ मेंटोर, किसी एक को भी डिसाइड कर लो लाइक Right. जो आपको कैपेबल लग रहा है उस टाइम। बिकॉज एक मेंटोर होना लाइफ में हर एक चीज़ में बहुत ज़रूरी होता है बिल्कुल बिल्कुल। कि एक मेंटोर है, देन आप चीज़ों को, आपको कोई गाइड करने वाला है। इजी बन जाता है वो हाँ, चीज। चीज़ें ईजी हो जाती हैं। तो ऐसी चीज़ें। ऑल्सो आई लाइक टू ऐड वन पॉइंट दैट लाइफ में एक मेंटोर होना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल जब मैं प्रिपेयर कर रही थी तो आई हैड एन मेंटोर, तो उन्होंने मेरे को ये चीज़ बताई थी प्रिपरेशन करते टाइम ही कि यू नो व्हाट, ये जो MBA की जर्नी है ना, ये 2 इयर्स की नहीं होती है जब आप कॉलेज में जाते हो, ये होती है 3 इयर्स की। फ्रॉम द डे यू हैव चूजन कि मेरे को MBA करना है और आप प्रिपेयर करना शुरू करते हो। सो आई लाइक टू एट दिस पॉइंट दैट IIM डजंट सेलेक्ट द स्टूडेंट, इट सेलेक्ट द पर्सन यू हैव बिकम ड्यूरिंग द प्रिपरेशन। So all the best students जो भी prepare कर रहे हैं, and that's all. Thank चलो, you. so that was really good advice from ma'am as well as यथार्थ. I hope the podcast help you. अगर आपके कोई और doubts हैं तो आप comment करके हमसे पूछ सकते हो. We are always there to reply you. And we also have a WhatsApp group link in the description. If you want to talk to any IIM mentor, you want to talk to me, all the teachers at iQuanta, you can definitely join the group. I hope the podcast helped you a lot. Thank you so much. We'll come up with more toppers in future. Thank you for watching us.